Good morning. Welcome to my class again. So, yesterday we completed the concept of triangles. We practiced the questions. Some question I have sent and some more question I will send from the triangles. So, we practice. So, today our new chapter will be coordinate geometry. The chapter is very easy. It is very easy. Coordinate geometry is very easy. So, you have got coordinate geometry, a little bit of coordinate geometry in class 9. So coordinate means the position. Actually in mathematics coordinate means position. So a position of a point, position of a line, position of any geometrical figure on the Cartesian plane, that is all about coordinate geometry. Coordinate geometry means the position of a point or a line or any geometrical figure. If you represent all these, that means coordinate geometry means the study about the position of a point or line or any geometrical figure using the Cartesian plane. So Cartesian plane क्या है? You have got in class 9. See, we used to have two axes. Till now up to class 10 we are getting the two axes, horizontal and vertical. That after class 10 in plus 1 you will get one more axis. 3-dimensional study होगा आपको. 10th में भी 3-dimensional concept है, एक दो में जैसे फिजिक्स में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, उसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, तो उसमें आपको 3-dimensional concept आएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका 10th तक सारा 2-dimensional concept है. दैट मीन्स ओनली टू एक्सिस राइट नाउ we are having. That is, one is horizontal axis and another is vertical axis. The horizontal axis is known as x axis. This is minus x. This is y plus y. कुछ ना देने का मतलब प्लस है आगे, हाँ, और इधर माइनस. So this is the system we have got in class 9. This is the Cartesian plane, and these are the Cartesian axis. See, x axis, y axis, they both are known as Cartesian axis. That means this is the plural form, this is the singular form, this is the plural form. So we have studied all this in class 9. What is Cartesian plane? This is Cartesian plane. What is Cartesian axis? X axis and y axis. Horizontal is x axis, vertical is y axis. And in class 9 we further studied that this is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, this is the fourth quadrant. And we know that while plotting a point, suppose the point is 3, 9. While plotting a point, first x part is written followed by a comma, then y part is written, and it is made under the bracket. Good. So that x part is known as abscissa and that y part is known as ordinate. This much we have got in class 9. Suppose you need to plot this point key at 2, 3. This point you need to. So this x part is 2. So go twice here. 2. Then you have to go 3. So this point is 2, 3. That means this is 2. If you draw perpendicular from this point, this is 2 and this much is 3. This much is 2. So this much you got in class 9. How to plot a point. X part is abscissa, y part is ordinate. So again in class 9 we got that ki in first quadrant both are positive. X is also positive, abscissa is also positive, ordinate is also positive. In second quadrant x is negative and y part is positive. In third quadrant both are negative. In fourth quadrant x is positive, y is negative. So this is the sign orientation of the quadrant you have got in class 9. So but in class 10 this is the basic we got in class 9. So using this theorem we have to study, using this concept, this knowledge you have to keep in mind. If you don't know how to plot a point using the Cartesian axis and all that, then how will you get to understand this coordinate geometry in class 10? It will be very much difficult for you. So that is why मैं बताया कि 9th में हमने जो मिला वो आपको रिवाइज कर दिया मैं आपको. This is all we have got in class 9. So 10th का आपका मैं टॉपिक शुरू करता हूँ. That is in class 10. In class 10 we will study only 3 topics. Distance formula, section formula, then area of triangle or quadrilateral. एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल. तो ये फॉर्मूला में हमको 2-3 दिन लगेंगे, इसमें 2-3 दिन लगेंगे, इसमें 2. दैट मीन्स 6-7
क्लासेस में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है, बहुत इजी आपको बता दूंगा मैं, बहुत अप्लाई कर पाओगे आप, पक्का डेफिनेट क्वेश्चन आएगा इसमें। तो मतलब जिसको बोले हमारे को इस चैप्टर में थोड़ा दिक्कत आएगा, बोले दिस इज फॉर श्योर, इसमें मार्क कैरिंग चैप्टर है ये, मार्क्स आपको कैरी करना पड़ेगा, डेफिनेट मार्क्स है। वो है बिकॉज इसमें आपको घुमा फिरा कर नहीं देगा, सीधा बोलेगा कि डिस्टेंस निकाल लो, सेक्शन जो भी आपको बताते रहूंगा तो समझ में आएगा। तो मैं आज डिस्टेंस फॉर्मूला शुरू करूंगा। टुडे आवर टॉपिक विल बी डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला मींस द नेम इज सेइंग दैट इट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू ऑब्जेक्ट। So suppose this is our Cartesian axis. One point is given 3, 7 and another point is given 4, 11. So these are the 2 points. 3, 7, that means this much distance is 3, this much is 7. और यहाँ से यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो ये आएगा 4, ये आएगा 11. तो you need to find the distance between these 2 points. So we have got a formula. आज तो फॉर्मूला बता देता हूँ, कल आपको डेरिवेशन भी बता दूंगा, आज टाइम इश्यू के लिए नहीं कर पाऊंगा। तो फॉर्मूला में बता दूं, इसलिए फॉर्मूला बता देता हूं ताकि यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एट योर होम एंड गेट सम क्वेश्चन सॉल्व्ड, सम एग्जांपल्स यू कैन सी फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सपोज वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स गिवन, एक x1, y1, एक x2, y2, ये 2 पॉइंट है हमारे को। तो इसमें x1, y1, x2, y2, दैट मींस x1 कितना है, 3 है, y1 7 है, x2 4 है, हमेशा फर्स्ट पार्ट इज x, एफ सी। तो ये दोनों पॉइंट के अगर डिस्टेंस निकालना है हमारे को, सपोज वी आर गिवन x1, y1, x2, y2, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। द फॉर्मूला इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आपको दिक्कत हो रहा है, मेरे को याद है, आपको कैसे याद रहेगा, याद करो, मैं बता दूंगा कल कहाँ से आया। तो कहाँ से आने का वो तरीका आपको पता लग जाएगा, देन यू कैन रिलेट दिस फॉर्मूला बहुत आराम से, यू कैन गेट इट टू द माइंड, आपको आराम से आ जाएगा, ये मैं कल बता दूंगा आपको। तो ये देखो, तो एक बात बताओ आपको कि 5 माइनस 7 का स्क्वायर जो होता है, 7 माइनस 5 का भी स्क्वायर इतना होता है, पता है ना आपको, 5 माइनस 7 इज -2, 7 माइनस 5 इज +2, तो +2 का स्क्वायर जो होता है -2 का भी स्क्वायर होता है। तो अगर ये x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्यों, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ये फॉर्मूला सेम है, इससे इसको माइनस करके स्क्वायर करूंगा, वही आंसर आएगा, गॉट इट ना। हाँ, तो इसी फॉर्मूला को x1 माइनस x2 का स्क्वायर था तो x2 माइनस x1 स्क्वायर कर दिया। तो दैट मींस इसको फॉर्मूला, एक्चुअली ये फॉर्मूला है डिफरेंस इन एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन ऑर्डिनेट का स्क्वायर। दिस इज द मेन फॉर्मूला। एक्चुअल डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट डिफरेंस इन एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन ऑर्डिनेट का स्क्वायर। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला कम्स, मैं आपको कल बताऊंगा। एक एग्जांपल बता देता हूं कि हाउ विल यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ताकि आप घर पे एग्जांपल कर सकते हो। अच्छा, और एक दो स्टार्टिंग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज का स्टार्टिंग का 2-3 क्वेश्चन कर सकोगे, उसके बाद थोड़ा और कंसेप्ट आएगा, मैं बताते रहूंगा एज ए होल, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। लाइक एग्जांपल एक देखना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट 4, 5, 3, 9, ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू x1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, गुड, 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का, ये x पार्ट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y पार्ट का। तो y पार्ट में 5 माइनस 9 ना करूंगा, मैं 9 माइनस 5 करूंगा, इसलिए आपको बोला था x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करो, वो बराबर होता है, गॉट इट ना। दिस इज द एग्जांपल। सो आंसर कितना आएगा हमारा, 4 माइनस 3 इज 1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 इज 4 का स्क्वायर, सो इट इज 1 प्लस 16, तो आंसर इज अंडर रूट 17। तो रूट 17 इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, गुड। तो आपको अगेन मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको। सपोज दिस इज -3, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा c 4 माइनस -3 मतलब +3 हो जाएगा ना, एक तो माइनस फॉर्मूला में था और अगेन -3 +3 हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 5 होल स्क्वायर, गुड, दिस इज द फॉर्मूला। तो 4 प्लस 3 इज 7 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 इज 4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, मिलाकर रूट ओवर कितना आ जाएंगे 65। तो इंडिस हुए आप ये कर सकते हो।
तो अगेन मैं आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से आया कल बता दूंगा, लेकिन फॉर यू आई एम डूइंग राइटिंग 5 होमवर्क्स यू हैव टू डू एट योर होम. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट, ये कर लेना कल, तभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा. एक तो ये पॉइंट में करो आप, दूसरा करो so these 4 homework you have to do. That means you find the distance between these points. कल इसका कहाँ से आया वो बता दूंगा नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला को. ओके, थैंक यू.